Welcome everyone, and primarily we're extremely sorry for getting late by nearly 8 minutes. But I hope you will excuse us for that. Sometimes technology takes over, as artificial intelligence will one day. And I thank Jaipuria Institute of Management for giving me this opportunity to be here to interact with youngsters who are just 60 odd days away from the biggest day of their life, that is taking CAT on 24th of November. I hope form भर दिया होगा, and you would be prepared by now, because last 60 days is only about maybe test taking, working on your strengths, and trying to eliminate a few of the weaknesses that you have. But majorly it is about test taking now. So strategy should be in place by now, and we should just go full throttle with the you can say sectional test and mock test. By the way, my name is Sudeep Bajpayee, and this is my channel, the Wise Bard Company. You may join it. We'll have some wonderful podcasts over there from people who have gone to IIMs and XRIs and FMSs of the world. You love to listen to them, especially kids coming from small towns and making their way right to the top. So it is inspirational. So I suggest you listen to these people. Anyway, getting back to why we are here. The agenda is very clear. I request you to please go and watch the previous two videos where we have discussed. In the first one, we did discuss about the approach that one should take, or not exactly one should take, but a few suggestions that in what ways can we attack reading comprehension and verbal ability sections, majorly reading comprehension. So please go and read, have a look at those two videos earlier. They are lying on the Jaipuria website. तो आप जाके YouTube चैनल तो वहां जाके आप प्लीज उसको एक बार देख लो. मोटा मोटी what happens is that you've got 24 questions and you've got 40 minutes. As simple. Now 24 questions and 40 minutes sounds like less than 2 minutes per question. But I hope everybody knows by now that we do not have to attempt all the questions. Please go for 10, 12, 13, 15. All right. हाँ, if you're having a wonderful day, तब तो 18, 20, 24 जो भी आप मार दो. But otherwise क्या है ना, even if you go for say 12 questions with 100% accuracy, we are sitting pretty. तो अब आप 12 सवाल देखते हो 40 मिनट में. अब बहुत टाइम है सडनली आपके पास. सो माइंडसेट थोड़ा सा ना रिलैक्स रखिए. You don't have to attempt 20 questions in 40 minutes. You have to attempt like 12, 13 questions in 40 minutes. Even 10 in certain cases. 10 सवाल भी आपने एक्यूरेटली कर लिया तो भी ठीक ठाक परसेंटाइल हमारी आ जाती है. But I suggest target 12 to 13 questions in 40 minutes, which is doable, क्योंकि सारे सवाल इतने मुश्किल होंगे नहीं कि हमसे 2-3 मिनट ले लें. और हाँ, there are certain questions which might kind of get us stuck. So you can make a choice of doing them or leaving them. But it will only come through a lot of practice now on. अगर आपने अभी से practice नहीं किया, अभी तक अगर practice नहीं किया, तो बेटा अब से जुड़ जाओ. Fine. Simple calculation है. Let's kind of have simple math. Let's say we have got 60 days. 60 days, अगर आप every day 2 से 3 RCB करते हो, तो you are sitting on like 120 to 180 passages. Fine. Now, this much practice is enormous. अभी भी देर नहीं हुई है, कहने का मतलब ये है. पहले आप कर लेते तो 300 RCs प्रैक्टिस कर सकते थे. अभी है तो you can still go ahead with 120 to 180 RCs just by doing 2 or 3 RCs every day. Now, 2 or 3 RCs, let us say one RC has 4 questions. How many minutes are we supposed to take? We are supposed to take around 8 to 10 minutes. Fine. अब एक RC ना 8 से 10 मिनट में हो रहा है. 2 RC कितना हो गया? बहुत ज्यादा, 20 minutes हो गया. ठीक है, 20 minutes, and then you kind of figure out the answers, the explanations, the errors, the mistakes, the thought processes. That will take another say 30 to 40 minutes. It is just a matter of 60 minutes per day. That's it. With 60 minutes per day, we will be sitting on 120 RCs, which is sufficient in the last 60 days. बहुत है इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो. अब प्लीज, मतलब मेरा सजेशन पर्सनली रहता है नाउ, प्लीज डू नॉट ट्राई टू इंप्रूव माय रीडिंग हैबिट एंड स्पीड एंड ऑल दैट. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन आरसीज. उसका फायदा सीधा सीधा क्या होता है, यू आर इन द वॉर जोन स्ट्रेट अवे. अब आप ना फालतू नहीं पढ़ रहे हो कि मजे ले रहे हैं. अब आप पढ़ रहे हो बिकॉज यू नो देयर आर क्वेश्चंस दैट विल follow, there are options that will follow, and you have to have your technique in place to eliminate all those options and just get the
करेक्ट वन। तो अभी बेस्ट क्या है ना कि आप वॉरजोन में ही रहो रादर देन ट्रेनिंग ग्राउंड पे, कि जब आएगा तो देखेंगे। अब आ चुका है, सो अब रीडिंग हैबिट नहीं है, धीरे पढ़ते हैं, तेज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, वो सब टाइम गया बेटा। अब पुट योर हेड डाउन एंड जस्ट जंप इनटू द जोन, एंड दैट इज आई विल बी डूइंग 2 to 3 RCs एवरी डे स्टार्टिंग टुमारो। हम अक्सर कल से ही शुरू करते हैं, आज तो देर हो गई थोड़ी सी। आज मैं आपको कम से कम एक आरसी तो करा के जाऊंगा। सो आज का हमने 2 का 1 कोटा तो एटलीस्ट कवर कर लेना है। बट दिस इज सिंपल। 100 पैसेजेस यार बहुत हो जाएगा बेटा। 100 पैसेजेस मींस यू आर सिटिंग ऑन 400 क्वेश्चंस। 400 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे। 400 क्वेश्चंस में एलिमिनेशन में आप 4 जाते हो, तो यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट 1600 ऑप्शंस। एक्चुअली 1600 ऑप्शंस जब आप लॉजिकली एलिमिनेट कर दोगे, ऑफ कोर्स इसमें से 400 हमारे आंसर्स होंगे, बट रिमेनिंग 1200 जब आप उनको लॉजिकली एलिमिनेट कर दोगे, और ये 4 लॉजिकली एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, योर लॉजिक इज गोइंग टू टेक ऑफ। मतलब आपको मजा आ जाएगा कि यार अच्छा इस एंगल से भी हम सोच सकते थे क्या। सो माय सजेशन इज इतने सारे हम एलिमिनेशन करके चलते हैं, 400 सवाल करके चलते हैं, 100 आरसीज करके चलते हैं। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु हैवंट वॉच्ड द अर्लियर वीडियोस, और मे बी who are not aware, we talked about just 2 processes कि भाई you need to verify and you need to eliminate। ये 2 चीज पे ध्यान रखना है। Once you get the options ABCD and you feel C is the answer, आपको पहली रीडिंग में लगा C आंसर है, प्लीज डू नॉट मार्क इट। आप क्या करोगे, C को दोबारा पढ़ोगे, दोबारा पढ़ोगे, वेरीफाई करोगे कि जो लिखा है वही समझ रहे हैं या कुछ और समझ गए हैं। नाउ वंस यू आर श्योर कि नहीं जो लिखा हुआ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई अंडरस्टैंड व्हाट इज written and what the message is, and I still believe answer is C, even then you go back to A and B and D and logically try to eliminate why not A, why not B, why not D. Once you have done that, then you can mark your answer as C. So you have verified that I understand C and I still believe it's the answer, and then you have eliminated A, B and D by logically arguing and stating कि भाई तुम तो आंसर नहीं हो सकते। Once you have done that, बेटा 12 सवाल भी करके आओगे ना, you'll be pretty sure कि जो 12 मैंने किए हैं वो 12 के 12 सही हैं, 10 के 10 सही हैं, 8 के 8 सही हैं, या 15 के 15 सही हैं। Alright, so please do not select your answers. Always try to eliminate and then get your answer. थोड़ा मेहनत का काम है शुरू में, फिर माइंड ट्वीक हो जाता है। It works like that. Then you automatically start working on elimination rather than selection. Selection में 5 में 3 का बनता है कि हाँ 3 सबके सही हो जाएंगे। एलिमिनेशन में अगर आपने 5 अटेम्प्ट किए हैं, लॉजिकली एलिमिनेट करने आपको आता है, 5 में 5 सही है। सो आई सजेस्ट सिलेक्शन हटाइए और एलिमिनेशन अप्लाई करिए। सो वेरीफाई एंड एलिमिनेट, वेरीफाई एंड एलिमिनेट। एक प्रॉब्लम आती है कि सर आखिरी में 2 बचते हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं। एक जैसे हो ही नहीं सकते, हमारे पढ़ने में दिक्कत है। रीरीड, पैराफ्रेज इट, अपने शब्दों में उसको समझिए कि यार ये क्या लिखा हुआ है। ऑलराइट, व्हाट इज द ऑप्शन ट्राइंग टू टेल मी, क्योंकि आंसर तो एक ही है ना, तो दोनों सिमिलर नहीं हो सकते। ऑब्वियसली हमारे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। बट हाँ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उनके पास 6-7 हैं। तो क्वेश्चंस क्या क्या सवाल है उनके पास भाई? देव गॉट अ क्वेश्चन ऑन सेंट्रल आइडिया, ठीक है। देन दे हैव क्वेश्चंस ऑन assumption, on inference, question on interpretation, then certain key ideas in a passage, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा लिया, उस पर कोई सवाल उन्होंने पूछ लिया। मे बी दे आस्क अस रिगार्डिंग टोन, फिर क्रिटिकल रीजनिंग क्या आ गया कि भाई स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग द ऑथर्स। बेटा यही सब तो लिमिटेड क्वेश्चंस है ना, तो यू ऑलरेडी नो द क्वेश्चंस दैट दे आर गोइंग टू आस्क। ऑलराइट, तो क्वेश्चंस तो हमको पता है, तो टेंशन नहीं होना चाहिए। डोंट वरी टू मच अबाउट द क्वेश्चंस, जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पूछा क्या वहां पे। ऑलराइट, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू हैव a practice. All right. So here we have a passage. अब क्या करते हैं ना बेटा? Let us read it and then let us try to find the answer to the questions that follow. All right. चलिए. It's a cool passage. It says, in public Greek life, I'll be reading very slowly so that everybody can kind of finish the passage with me. And then we come to the
questions. All right. And एक चीज और है, एक प्रॉब्लम आता है, दैट इज रिगार्डिंग मैपिंग द पैसेज, कौन सी बात कहाँ पे हुई है. सो इफ यू जस्ट टेल योर माइंड कि लुक बॉस, पढ़ना है, समझना है, याद रखना है कहाँ पे क्या बात हुई है, और यू कैन जस्ट नोट डाउन अ वर्ड और टू हियर एंड देयर, so that you know the entire sequence of ideas that the passage has discussed. Because trust me, we will have to come back and reread and then answer. Okay, so try to map the passage. बात क्या हुई है, कहां पे हुई है, central idea क्या है, main मुद्दा है क्या हमारा. All right, we have the first line that says, in public Greek life, a man had to make his way at every step through the immediate persuasion of the spoken word. होता क्या था कि आपको अगर ग्रीक लाइफ पुरानी अगर हम बात करें, पब्लिक ग्रीक लाइफ की बात करें, तो उसमें क्या है कि आपके अंदर बोलने की क्षमता होनी चाहिए, so that you are able to persuade people. All right, whether it be addressing an assembly, a law court, or a more restricted body, his oratory would be a public affair rather than under the purview of a quiet committee, without the support of circulated commentary and with no backcloth of daily reportage to make his own or others' views familiar to his hearers. वो कह रहा है इंसान के पास एक ही चीज होना चाहिए था, वो था ओरेटरी, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपनी बात मनवा पाने का. ऑप्शंस लाइक it was not in front of a quiet committee, there was no support of circulated commentary, and of course there was no daily reportage कि यार वहां कल बात हुई थी, परसों बात हुई थी, ऐसे बार आता है. with newspaper what happens that you can remain in the news, people may read and change their opinions and decisions, but पहले ये सब था ही नहीं, तो एक ही वेपन था, वो क्या था, oratory skills, बोल के बातें समझना. in fact if you know Cicero used to go and stand in front of the basically go to the beach, and वहां पे he used to practice his oratory, because समंदर शोर मचाता है, तो उस शोर में he was trying to get his voice across, because he knew कि उसको पब्लिक में बोलना रहेगा, तो पब्लिक शांत है, नहीं है, यहां पे है, दूर है, बहुत दूर है, मेरी आवाज सब तक पहुंचनी चाहिए. So he used to practice standing against the sea and shouting at the top of his voice. That was the importance of oratory skill. The oratory's immediate effect was all important. It would be naive, it would be foolish kind of to expect that mere reasonableness or an inherently good case would equate to a satisfactory appeal. वो कहता है यार ये थोड़ी बेवकूफी होगी अगर हम ये मान के चलें कि हमारा लॉजिक अगर ठीक है तो लोग हमारी बात मान लेंगे. Oratory चाहिए, oratory. Therefore, it was early realized that persuasion was an art, up to a point teachable, and a variety of specific pedagogy was well established in the second half of the 5th century. अब वो कहते हैं persuasion एक आर्ट थी जो कि कुछ हद तक हम उसमें ट्रेनिंग ले सकते थे या दूसरों को ट्रेन कर सकते थे. When the sophists claimed to teach their pupils how to succeed in public life, rhetoric was a large part of what they meant. Rhetoric, again, your ability to speak persuasively. What they meant, though, to do them justice, was not the whole. अब यहाँ पे एक word आया हमारे सामने, that is sophist. Now, sophists were perhaps the earliest teachers who started charging for teaching. वो पढ़ाने की फीस लेने लगे, तो इनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला था कि बताओ यार शिक्षा तो है मुफ्त में बंटनी चाहिए और तुम उसके पैसे ले रहे हो. तो सोफिस्ट के खिलाफ ये थोड़ा एक इल्जाम उन पे लगा हुआ था. ये इन्होंने क्या किया था, दे क्लेम टू टीच देयर पीपल्स हाउ टू सक्सीड इन पब्लिक लाइफ. रेटोरिक उसका एक बहुत मेजर हिस्सा होता था, हालांकि इट वाजंट द ओनली थिंग, बट यस इट वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग. स्किल नेचुरली ब्रेड मिसट्रस्ट. अब आए हम दूसरी दिक्कत पे. स्किल के साथ एक मिसट्रस्ट आ जाता है. वो क्या, इफ अ मैन ऑफ गुड विल हैड नीड ऑफ एक्सप्रेशन एडवांस्ड ऑफ मेयर ट्वर्डल, मतलब नॉनसेंस से आगे बढ़ने की बात कर रहा है, टू लर्न हाउ टू एक्सपाउंड. बेटा एक्सपाउंड माने टू प्रेजेंट हिज आइडियाज, टू एक्सपाउंड हिज कंटेंशन इफेक्टिवली. द ट्रक्यूलेंट और पग्नेशियस. ट्रक्यूलेंट इज समबडी हु इज अग्रेसिव, हु इज लुकिंग फॉर अ फाइट, किया लड़ते हैं. पग्नेशियस अगेन जुझारू, झगड़ालू थोड़ा. could be taught to rest their case in well seeming guise. Now the problem is they said कि भाई मिस्ट्रस्ट कैसे आता है यार, कोई बंदा है जिसकी नीयत कुछ और है लेकिन हमने उसको बोलना सिखा दिया. हिपोक्रेट्स क्या करते हैं, दे कैन टॉक रियली स्वीट, वो अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, ठीक, क्योंकि अच्छा क्या है बढ़िया क्या है ये पता तो सबको है. तो कोई व्यक्ति है जो उसको बड़े इत्मीनान से आपके सामने बोल दे रहा है, आप 2 मिनट में पिघल जाते हो कि अरे कितना बढ़िया आदमी था. सो दिस इज द प्रॉब्लम, इट दिस कैन बी टॉट. बिकॉज मान लीजिए
सॉफ्ट स्पोकन बंदे सिर्फ वो होते जो दिल से अच्छे हैं, तो अलग बात थी। बट सॉफ्ट स्पोकन तो आप देखो, बहुत धूर्त आदमी भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो सकता है, इनफैक्ट होता है, चांसेस आर, क्योंकि उसको छलावा करना है, उसको छलना है। ऑलराइट, सो इफ दिस टेक्निक कैन बी टॉट, इट बिकम्स dangerous. Now suddenly you find somebody who's very polite, who is very kind of down to earth kind of personality, वो प्यार से बोल रहा है, हमें शक हो जाएगा कि यार ये ना, ये ट्रेनिंग लेके आया, ये बंदा है कुछ और दिख कुछ और रहा है। ठीक, that is where the mistrust cropped up. It was a standing charge against the sophists that they made the worse appear the better cause. वो पैसे ले रहे थे, बोलते हैं हम सिखा देंगे, चाहे तुम कुछ भी कहो, हमें क्या पता, हमें क्या फर्क पड़ता है, आप अच्छे नियत के हैं, बुरे नियत के हैं। तो ये इनके खिलाफ चार्ज लगा। And it was this immoral lesson which the hero of Aristophanes' Clouds went to learn from. Of all people, Socrates. और ये सीखा कहां से? Socrates, पिताजी फिलोसफी के। Again, the charge is often made in court that the opponent is an adroit, is an expert, is an adroit orator, and the jury must be circumspect. Jury must be alert कि भैया शक करे रहो इन पे, so as not to let him delude them, ताकि उनको वो भटका ना पाए. From the frequency with which this crops up, it is patent that the accusation of cleverness might damage a man. और अगर क्लेवरनेस का आप पे इल्जाम लग गया, समटाइम्स यू फाइंड अ पर्सन गया बहुत ओवर स्मार्ट है, अब वो कुछ ठीक भी कर रहा होगा ना, तो भी हमें उस पर शक ही रहता है. इन रीस, juries of course were familiar with the style and would recognize the more evident artifices. ये जो छलावे हैं झूठ मूठ के, इनको वो पहचान लेते थे, क्योंकि उनको सबकी स्टाइल्स पता थी, कहां से ट्रेनिंग लेके आ रहा है बंदा. But it was worth a litigant's while to get his speech written for him by an expert. फिर भी बेहतर यही था कि कोई लिटिगेंट है, इसने अपना केस फॉरवर्ड रखना है, बेहतर होगा वो अपनी स्पीच किसी एक्सपर्ट से लिखवा के ले आए. Persuasive oratory was certainly one of the pressures that would be effective in an Athenian law court. A more insidious danger. बेटा, insidious means something which is not apparent, साफ दिख नहीं रहा है लेकिन धीरे धीरे फैल रहा है, that is insidious. तो ये खतरनाक चीज है, क्योंकि ये अचानक से नहीं आ रही है, slowly pervade कर रही है. A more insidious danger was the inevitable desire, something that cannot be stopped from occurring, होके रहेगा, inevitable desire to display this art as an art. और एक खतरा ये था कि जिसको बोलना आ गया, अब वो कंटेंट पे ध्यान नहीं दे रहा, वो बस अपनी कला आपको दर्शा रहा कि लोग बॉस क्या बोला है मैंने, मजा आ गया. It is not easy to define the point at which a legitimate concern this style shades off into preoccupation with manner at the expense of matter. But it is easy to perceive that many Greek writers of the 4th and later centuries passed that danger point. हम exactly नहीं बता सकते कि यार यहाँ पे ना आप गलत कर रहे हो, but इतना तो पता है कि बहुत सारे लोग गलत कर गए थे, danger mark cross कर गए थे. The most influential was Isocrates, who polished for long years his pamphlets, written in the form of speeches, and taught to many pupils the smooth and easy periods he had perfected. Isocrates took to the written word in compensation for his inadequacy in live oratory. अब बंदा चूंकि yes, somebody raised his hand or her hand. If you can speak, I think I can answer. You can post your inquiry in the chat. All right, I have the chat on, so if anybody wants to put some question out there, it's perfectly fine. क्योंकि हम तो अपनी धुन में भाई पढ़ रहे हैं, हम तो ओरेटरी में हैं. चलिए, हाँ, आइसोक्रेटिस का प्रॉब्लम क्या था कि बंदा बोलता उतना अच्छा नहीं था, तो उसने क्या किया ना, अपने पैम्फलेट्स यानी कि रिटन वर्ड पे फोकस करना स्टार्ट किया, वहां से लोगों को बताना शुरू किया. द टफ Isocrates took to the written word in compensation for his inadequacy in live oratory. The tough and nervous tones of Demosthenes were far removed from his, though they too were based on study and practice. और ट्रेनिंग पे ही बेस्ड थे उसके भी जो पैम्फलेट्स थे. The exaltation of virtuosity did palpable harm. जो वर्चुओसिटी को इन्होंने एक्सॉल्ट किया है कि बिल्कुल ऊपर बिठा दिया है समाज में, उससे एक अपेरेंट हार्म हुआ. पैल्पेबल क्या होता है? जो चीज आप महसूस कर सकते हैं, जैसे पल्स है, तो आपने हाथ लगाया तो वो डुक डुक डुक, दैट इज
palpable, ये होता है. The balance was always delicate between style as a vehicle and style as an end in itself. या तो आप स्टाइल मार के ना अपनी बात मनवा रहे हो, या फिर आप केवल स्टाइल ही मार रहे हो कि देखो मैं कितना स्टाइलिश हूं, और दोनों में बैलेंस थोड़ा बिठाना कठिन होता है. We must not try to pinpoint a specific moment when it once and for all tipped over. But certainly, as time went on, virtuosity weighed heavier. While Greek freedom lasted, and it mattered what course of action a Greek city decided to take, rhetoric was a necessary preparation for public life, whatever its side effects. It had been a source of strength for Greek civilization, that its problems of all kinds were thrashed out very much in public. The shallowness which the study of rhetoric might, not must, encourage was the corresponding weakness. All right. Sneh Ashish. All right. I have a doubt that the time is very less for questions and there are huge boring paragraphs. How to solve this problem? All right. First of all, you got to understand that life is boring. पहला चीज, ठीक है? So you get used to that. पैसे भी बोर्डम झेलने के मिलते हैं. What is practice? Practice is doing the same thing almost every day. तो कहीं थ्रिल तो आ नहीं रहा है, ठीक है? तो है तो बोरिंग until आप वॉर फ्रंट पे हो और गोलियां चल रही हैं, लेकिन वो थ्रिल क्या बर्दाश्त कर पाते हैं, वो भी बड़ी बात है. सो नंबर वन, we have to take away this word boring from our vocabulary because life is like that. बेटा वही काम रोज करना पड़ेगा, ठीक है? तो या तो उसी में थ्रिल. मैंने कहीं पे पढ़ा था, एक किताब है कॉम्प्लिकेशंस करके. नाउ दिस इज वंडरफुल. तो कॉम्प्लिकेशंस में एक हॉस्पिटल के बारे में बताया गया है, शोल्डर्स हॉस्पिटल इन कनाडा. तो वहां पे क्या था कि दोज पीपल कंडक्ट ओनली एंड ओनली हर्निया सर्जरीज, और उनका हर्निया रिकरेंस रेट 0.1% है, जबकि जो वर्ल्ड रिकरेंस रेट है आफ्टर सर्जरी दोबारा हर्निया हो जाएगा वो 7%. तो एक टीम पहुंची कि सर आप करते क्या? उन्होंने देखा कि वो लोग केवल हर्निया ऑपरेट करते हैं. तो किसी ने पूछा कि सर आप जिंदगी भर एक ही ऑपरेशन कर रहे हो, बोर नहीं हुए या बोर नहीं होते? तो डॉक्टर था, उसने बोला वेयर इज बोर्डम इन परफेक्शन, वी आर चेजिंग परफेक्शन हेयर. हम लोग यहाँ पे परफेक्शन चेज कर रहे हैं, बोर्डम कहाँ आएगा वहां पे? बिकॉज वी आर स्टिल मिसिंग द मार्क. तो पैराग्राफ्स हैं, लेंदी है, हमारा माइंड ट्रेन नहीं है उनको पढ़ने के लिए. आई अंडरस्टैंड ऑल दिस, बट देन यू गॉट टू बी वेरी मैकेनिकल अबाउट इट. कि देख यार, सर्जन मैं हूं, ये बंदा टेबल पे पड़ा हुआ है, इसको सर्जरी चाहिए, मैं बोर नहीं हो सकता. आई हैव टू डू माई बेस्ट. बेटा सब माइंड कंट्रोल का खेल है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई ऐसी बकवास नहीं है कि आंखें बंद कर लो, ये कर लो, वो कर लो. यू हैव टू जस्ट कंट्रोल योर माइंड कि एक काम है वो करना है, बस खत्म. पोस्ट कोविड व्हाट हैज हैपेंड, वी हैव गॉन टू मच लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट कि यार कहीं हर जगह मजा आना चाहिए. अरे क्यों मजा आना चाहिए? यू आर डूइंग सब, यू आर चेजिंग परफेक्शन. मजा काफी है उतना. और सक्सेस उन्हीं को मिला है जिन्होंने एक किताब 10 बार लगाई है, रादर देन 10 किताबें खरीद के बैठ गए और कुछ नहीं किया. बेटा, सो आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. यू कैन नॉट स्केप रिपीटेटिव वर्क. आपको लगातार बार बार, सचिन तेंदुलकर 25 साल खेले हैं सिर्फ क्रिकेट, दैट्स इट. वो बंदा बोर हो गया होता कि नहीं अब हाथ से हॉकी खेलेंगे. विराट कोहली अब कल से टेनिस खेलेंगे, नहीं बोर होते बेटा. ऑलराइट, यू गॉट टू पुट योर हेड डाउन. अगर आपने कोई काम करना है, अच्छे से करना है. अब आपने एमबीए करना है, आपने कैट क्रैक करना है, आपकी प्रॉब्लम है, किसी ने तो कहा नहीं आपसे. अब नाउ दैट यू हैव डिसाइडेड टू डू इट, यू बेटर गेट डाउन. क्या बोर्डम? भिड़ा पड़ा यार, रोज नए नए पैसेज पढ़ रहा है, नए नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ऑप्शन से भिड़ रहा है, लॉजिक लगा रहा है. कहाँ बोर्डम है यार? इतना मजा आता है. ठीक है, चेंज योर माइंडसेट, कोई बोर्डम नहीं है. ऑलराइट. हाँ, गेटिंग बैक, क्या कर रहे थे अपन? मैं भूल गया हम क्या पढ़ रहे थे. बेसिकली ग्रीक पब्लिक लाइफ में ओरेटरी पे फोकस कर रहे थे कि यार काम वहां बनता था केवल बोलने से. तो बोलने की क्या हुई कि लोगों ने ट्रेनिंग देनी और लेनी स्टार्ट कर दी. उसका प्रॉब्लम क्या हुआ? दैट सम पीपल दे स्टार्टेड ड्रेसिंग अप देयर इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स विद वंडरफुल ओरेटरी. और कुछ लोग थे उनको कंटेंट से मतलब ही नहीं था, वो केवल अपनी ओरेटरी दर्शाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, बेसिकली शो ऑफ करना चाहते थे. स्टाइल टुक ओवर content. All right. Now let's go to the first question. पहला सवाल आपके लिए, 2 रुपए के लिए. If the author of the passage traveled to a political convention and saw various candidates speak, he would most likely have the highest regard for an orator who. Now this is an absolute question, superlative question है. वो कह रहा है highest regard किसके लिए? हो सकता है वो सबको इज्जत दे रहा हो,
सबसे ज्यादा किसका फैन बनेगा, ये सवाल है। चांसेस आर यहां पे एक से ज्यादा ऑप्शंस ट्रू हो सकते हैं। ऑलराइट, सो वी नीड टू बी केयरफुल कि सबसे ज्यादा वो किसको जो है रिस्पेक्ट देगा। नंबर वन, roused his hearers to immediate and decisive action. Number two, understood that rhetoric serves as an aesthetic as well as a practical purpose. Number three, relied on facts and reason rather than on rhetorical devices in making his case. Number four, passed on the techniques he had perfected to many students and made use of flowery and inflated words. Now, but I'll wait for your answer for this one. आप फिर से एक बार पढ़ लो और कोशिश करो आंसर करने का। इज इट ए और बी और सी और डी? आई लीव द स्क्रीन टू यू। प्लीज कम अप विद आंसर्स। गलत सही देखा जाएगा यार। ओके, द यूथ, एक ने आंसर दिया, नम्रता सेज बी। ऑलराइट, we'll discuss it. Dhananjay says C. Okay. Divyanshu says A. Shubhanshi B. Aliza, Rohit, Pri says B. Aliza says C. Adil says A. तो बेसिकली अच्छा, कोई डी भी बोल गया? रोहित भाई ने डी भी बोल दिया, ठीक है। तो हमारे ए बी सी डी सब हो गए, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, तो भारतीय यूथ काफी बटा हुआ है, ए बी सी एंड डी ऑल। भाई ई को अनाथ क्यों छोड़ा? ई भी बोल दो कोई जन। ई नहीं बोल रहे? चलिए, ललिता सेज बी, आदित्य सेज ए, प्री सेज बी, रोहित भाई सेज ए। ऑलराइट, let us discuss them, let us discuss them. If the author of the passage traveled to a political convention and saw various candidates speak, he would most likely have the highest regard for an orator who, किसके लिए सबसे ज्यादा regard रहेगा? Number one, roused his hearers to immediate and decisive action. All right. Now, this may be a part of it. This may be a part of what the passage discussed. But then हमारा author क्या इससे impress होगा बहुत ज्यादा? कि हो सकता है, maybe हो सकता है, क्योंकि maybe the speaker उसने सारे रॉन्ग लॉजिक दिए रखे हैं, सारे रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं। बोलता बड़ा अच्छा यार, चूंकि बोलता बड़ा अच्छा है तो पब्लिक भड़क गई, इमीडिएट एक्शन ले लिया। इट्स अ पॉसिबिलिटी। ऐसे बंदे से वो बहुत इंप्रेस तो नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा अभी भी कह रहा है यार कंटेंट कंटेंट कंटेंट। ही इज नॉट टू इंप्रेस विद पीपल हु हैव गॉट ग्रेट स्टाइल, मे नॉट हैव वंडरफुल लॉजिक, बट स्टिल मैनेज टू परसुएड पीपल। तो बेटा ये तो लॉजिकली आप देखो हटता है। टू, understood that rhetoric serves as an aesthetic as well as a practical purpose. एस्थेटिक पे हमारा ऑथर इतना ध्यान नहीं दे रहा है। वो तो बार बार कह रहा है कि भैया कंटेंट पे फोकस करो, वरना यू आर ड्रेसिंग अप योर आर्ग्यूमेंट। आपका आर्ग्यूमेंट गलत है, लेकिन आपने उसको भाषा किसे ड्रेसअप कर दिया है, लोगों को आर्टिफिसेस, छलावा, छल। यस, आई थिंक दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सी, relied on facts and reason rather than on rhetorical devices in making his case. ये बंदा डेटा लेके आया है, लॉजिक लेके आया है। लेट अस होल्ड इट, अभी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे इसको। Passed on the techniques he had perfected to many students. बेटा टेक्निक एंड परफेक्टेड, ये तो सोफिस्ट के खिलाफ वैसे ही इल्जाम था, या आइसोक्रेटिस के खिलाफ वैसे ही इल्जाम था कि भाई ऐसा है कि आपने ट्रेनिंग दे लिया लोगों को और वो जाके उस हिसाब से बोल दे रहे हैं, लॉजिक सिखाया नहीं आपने। दिस इज एलिमिनेटेड। ई, made use of flowery and inflated words. Not at all. अगर भाषा बड़ी सुंदर सुंदर बोल रखी है और लॉजिक उसमें नहीं आ रहा है, तो भी हमारा ऑथर बहुत इंप्रेस नहीं होगा उससे। सो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन सी, relied on facts and reason rather than on rhetorical devices in making his case. बेटा आई होप यू गॉट द पॉइंट। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल द ऑप्शंस। सी को हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे। ऑलराइट, बाकी सब में देखिए वैलिड आर्ग्यूमेंट हमने दे दिया है कि यार ये बंदा हो सकता है गलत बात बोल के पब्लिक से फैसला करवा ले। ये बंदा किस पे ध्यान? एस्थेटिक पे दे रहा है। ऑलराइट, ये बंदा फैक्ट्स एंड रीजन लेके आया है, मतलब कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। ये बंदा टेक्निक्स फॉरवर्ड कर रहा है, तो टेक्निक का फैन तो हमारा ऑथर वैसे भी नहीं है कि टेक्निक अगर आप लर्न करते हो तो आप गलत चीज को भी ड्रेसअप करके बेच सकते हैं। ऑलराइट, एंड देन फाइनली made use of flowery and inflated words, which again is just dressing up the speech. All right.
सो आंसर फॉर द फर्स्ट वन इज सी. तो किसी का तो सही हुआ यहाँ पे. अलीजा गॉट इट राइट एंड ऊपर भी somebody was there who got it right. Let me just check it once. Dhananjay got it right. So Dhananjay and Aliza, there were two kids who got the answer right. चलो भाई, बहुत बढ़िया. इतने लोगों में से दो ने सही मारा. Next one. Historians agree that those seeking public office in modern America make far fewer speeches in the course of their campaign than those seeking a public position in ancient Greece did. The author would most likely explain this by pointing out that I'll just wait for an answer for question number 2. I leave the screen to you before I discuss it. All right. All right, we have the first answer coming from Pooja. Namrata, sorry. Namrata and Pooja, they have answered. They both answered the same thing. Dhananjay answers again. All right. Hariom, cool. Oh wow, Divyanshu, Rohit, Shweta, Shubhanshi. All right, majority says B. Lalita also says B now. मतलब now क्या पहले भी? Shreya, B, okay. Aditya says C. All right, chalo. Let us try and eliminate. Okay, question is, historians agree that those seeking public office in modern America make far fewer speeches in the course of their campaign than those seeking in a public position in ancient Greece did. Current America में लोग कम public speeches देते हैं मुकाबले जो ग्रीस में दिया करते थे. All right. Okay. Speeches are now only of limited use in the abrupt vicissitudes of politics. बेटा ये वर्ड याद कर लो यार, ये बहुत आता है, पता नहीं क्यों आता है. उतार चढ़ाव, जिंदगी के उतार चढ़ाव, दैट इज vicissitudes of. अब यहाँ पे पॉलिटिक्स के उतार चढ़ाव, राजनीति के उतार चढ़ाव है. ठीक है. तो स्पीचेस आर नाउ ओनली ऑफ लिमिटेड यूज इन द अब्रप्ट vicissitudes ऑफ पॉलिटिक्स. आउट ऑफ स्कोप है बेटा, ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ है कि पॉलिटिक्स के उतार चढ़ाव में आज इनकी कम आवश्यकता है. लेट अस एलिमिनेट दिस वन. बी, modern politicians need not rely exclusively on speeches to make themselves known. I think so. Because क्या हो रहा है, आप पैसेज का स्टार्ट क्या था कि ग्रीक पॉलिटिक्स में एक ही तरीका था अपनी बात मनवाने का, वो था पब्लिक ओरेटरी. आप जनता के बीच में खड़े हुइए और अपनी बात बोलिए. अब क्या है, अमेरिका में कम जरूरत है इसकी, बिकॉज और भी मीडियम या मीडिया आ गया है हमारे पास इस बात को आगे बढ़ाने के लिए. लेट्स होल्ड इट. लेट अस लॉजिकली एलिमिनेट ऑल अदर्स, द रिमेनिंग वंस एट लीस्ट. सी, मॉडर्न ऑडियंसेस आर इजियर टू परसुएड थ्रू रेटोरिक देन विद द ग्रीक ऑडियंसेस. बेटा मॉडर्न ऑडियंसेस की कोई बात यहां पे हुई नहीं है कि दे आर easier to persuade. We have not talked about modern audience anyway. All we have talked about is the Greek. Fine. ये गया. Modern politicians do not make a study of rhetoric as did the Greek. Okay. A thing is, do not make a study. कैसे मान लें भाई? All right. That they do not make a study of rhetoric as did the Greeks. Modern America is not much different from ancient Greece. अगर नॉट मच डिफरेंट होता तो उनको जरूरत पड़ती ना फिर ओरेटरी की. दिस इज ऑल्सो गॉन. आंसर बी, मॉडर्न पॉलिटिशियंस नीड नॉट रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन स्पीचेस टू मेक देमसेल्व्स नोन. क्योंकि पहले ग्रीक्स में एक ही तरीका था, वो था पब्लिक स्पीच का. अब और भी तरीके हैं, सोशल मीडिया फॉर एग्जाम्पल. हालांकि यहां पे उसका डिस्कशन नहीं हुआ है, सो वी आर नॉट सपोज टू
discuss. So answer for this one is B for Bombay. But yeah, I'm happy that majority of people, जो मेरे सामने स्क्रीन पे है ना, मैं नाम लेता हूँ, श्रेया got it right, Lalita got it right, Divyanshu got it right, Rohit got it right, Shubhanshi got it right, हरिओम got it right, धनंजय got it right. हाँ, तो काफी लोग यार, आंसर बहुत लोगों का सही था यहाँ पे. सो आई थिंक अब थोड़ा कुछ भेजे में आ रहा होगा कि लॉजिकली एलिमिनेट कैसे करते हैं चीजों को. या तो वो गलत है, या वो आउट ऑफ स्कोप है, या उसकी बात ही नहीं हुई है कहीं पे. ऑलराइट, नाउ द थर्ड क्वेश्चन. नाउ दिस टाइम I'll let you read the question and the option both yourself. So please go ahead. I'll wait for your answer. जस्ट यूज अ माइंड टू एलिमिनेट. बेटा वर्ड्स के बेसिस पे आप एलिमिनेट करो ऑप्शंस को कि यार ये तो बात ही नहीं हुई है, ऐसे करके यू विल गेट द आंसर. All right, we're the first one to answer, that is Aditya. But Aditya, मैं क्या मानूं, B और C? C and B actually. Acha, C was the previous one. Okay, Dhananjay has given the answer. All right, we'll just come to it. Namrata has given the answer. Hariom, okay. Lalita, Shreya, Shweta, Pri. All right. हम्म. हरिओम, इमेज क्लियर नहीं आ रहा है, मतलब व्हाट डू आई मेक आउट ऑफ इट, बिकॉज आई थिंक इंटरनेट का इशू तो नहीं है आपके यहाँ पे, बिकॉज बाकी तो ठीक है. यहाँ दिव्यांशु हैज गिवन. ओके, फाइन फाइन फाइन. चल अपन क्वेश्चन एंड एलिमिनेशन पे उतरते हैं जरा. Implicit in the statement that the exaltation of virtuosity was not due mainly to Isocrates, because public display was normal in a world that talked far more than it read, is the assumption that. Assumption क्या होता है बेटा? What do you mean by assumption? टेक्निकली कहते हैं the unstated premises assumption. मैंने बोला हुआ है कि लाइफ में आप जो भी कहोगे, जो भी करोगे, उसके पीछे जो आपका लॉजिक है, द अनसेड लॉजिक, जो आप मान के चल रहे हो, वो आपका assumption होता है. तो दिस सवाल इज बेस्ड ऑन assumption कि यार ये जो लिखा है स्टेटमेंट दैट exaltation of virtuosity was not due mainly to Isocrates because public display was normal in a world that taught far more than it read. वो कहता है कि यार केवल Isocrates की प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये है कि यार जनता बोलती ही ज्यादा है, पढ़ती कम है. तो इसमें हमने क्या अज्यूम कर लिया? दिस इज द क्वेश्चन. Isocrates was actually concerned as much with the content of his speeches as with their style. Now, this goes against the premise because ये बंदा, he was more concerned with what? He was more concerned with style. तो ये तो premise हिला, गलत हुआ. Excessive concern with style is bound to arise in a world
dominated by public display. अब don't you think बेटा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, public display was normal in a world that talked more, far more than it read. कि यार आइसोक्रेटिस की गलती अकेले नहीं है, जब जनता बोलती ही ज्यादा, वहां पे पब्लिक ओरेटरी की ही जो है वो पूछ है, बोलबाला है, तो ऑब्वियसली फिर बंदा कहां जाएगा? He will focus on style because it is dominated by public display. अकेले बैठ के थोड़े पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, सबको दिखाना भी होता है, तो दिखाना होता तो उस हिसाब से पढ़ रहा है वो। जैसे आप लोग करते हो कि अ डे इन द लाइफ ऑफ अ कैट एस्पिरेंट, फिर आप मस्त वीडियो बनाते हो उसका, टिक 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 में 6 घंटे ये पढ़ा, फिर 2 घंटे ये पढ़ा, कितने व्यूज मिलते हैं यार, मजा आ जाती है। मैं पढ़ाता हूं जेन्युइनली, मुझे 3 व्यूज नहीं मिलते। तो पब्लिक डिस्प्ले तो हो रहा है ना, तो पब्लिक डिस्प्ले उस हिसाब से लोग बिहेव कर रहे हैं। ऑलराइट, नंबर सी, अभी इसको होल्ड किया बेटा, अभी आंसर नहीं मार्क किया बाय द वे। The Greeks were guilty of exalting virtuosity in their public art and architecture as well. Beta, there is no discussion of public art and architecture. हमारे स्कोप के बाहर है, कि स्टाइल की बात हुई है, आर्किटेक्चर या पब्लिक आर्ट की बात नहीं, eliminated. Isocrates was less influential than previous historians estimated. Nope. There should be no connection between communication style and public display of thoughts. बेटा बहुत लोगों ने ये आंसर किया था, I don't know why. ये क्या कहता है? There should be no connection between communication style and public display of thoughts. बेटा एक सिंपल सा फंडा है जो मैंने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है, that any option that is absolute या फिर that is extreme या that is superlative, मोर ऑफन देन नॉट ये हमारा आंसर नहीं होता है बेटा। नो, नेवर, ऑलवेज, मोस्ट, बेस्ट, वर्स्ट, इस तरह के जो ऑप्शंस होंगे वो हमारा आंसर नहीं होते हैं, बिकॉज अगर कोई बंदा सेंसिबल है तो कभी भी एक्सट्रीम्स में बात नहीं करेगा, हमेशा बैलेंस्ड व्यू पॉइंट देगा। अब इसने क्या बोल दिया, ये अजम्पशन हो ही नहीं सकता, ये तो अपना ओपिनियन दे रहा है। देयर शुड बी नो, देयर शुड बी नो कनेक्शन, कैन नॉट बी द आंसर, एलिमिनेटेड। क्या बचा बेटा? बी फॉर बॉम्बे, excessive concern with style is bound to arise in a world dominated by public display. I think Dhananjay was the one who got it right. Baki janta, Divyanshu was the one who got it right. Okay. Prince, बेटा पहले कैट में नंबर लेके आ, ठीक है, ये बातें बाद में करेंगे, कैन आई गेट इन और नॉट, गेट द मार्क्स ऑन द टेबल, देन यू नेवर नो। ऑलराइट, हाँ जी। So answer for this one is again B. So I think we had C, we had B, and we had B. Beta, anyone who got all 3 correct, आप में से कोई ऐसा महान योद्धा जिसके तीनों सही हो गए हो? और अगर नहीं भी हुए हैं तो बेटा आई होप यू फाउंड द टेक्निक, द रिलेवेंट टेक्निक। क्या है? एलिमिनेशन है। कैसे? शब्दों पे, लॉजिक पे, सेंटेंसेस पे, आउट ऑफ स्कोप पे, गलत पे, वीकनिंग पे, ऑप्शंस इतने सारे हैं जिनके थ्रू आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी सवाल को देखो बेटा, हम कैसे कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं इसको, कंसर्न एज मच विद कंटेंट, यही गलत हो गया, ठीक है। इसको कैसे एलिमिनेट किया? गिल्टी ऑफ एक्सॉर्टिंग पब्लिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पूरे पैराग्राफ में कहीं भी आर्किटेक्चर की बात ही नहीं हुई, कहां से हम उस पर अजम्पशन लगा देंगे, ठीक है। वॉज लेस इन्फ्लुएंशियल, हाउ कैन यू अज्यूम दैट? देयर शुड बी नो कनेक्शन, एब्सोल्यूट, एंड प्लस देयर शुड बी नो कनेक्शन, ये अजम्पशन ऊपर वाले सेंटेंस से फिट नहीं हो रहा हमारा, ठीक है। बाय द वे मैं ना चलते चलते ना आपको अजम्पशन का फंडा छोटा सा दे देता हूं, दैट इज ओके। यू टॉक अबाउट अजम्पशन। बेटा अजम्पशन क्या है कि ये आपका पैराग्राफ होगा, ठीक है, और जो स्टेटमेंट होगा वो ये होगा, फॉर द अबव स्टेटमेंट टू बी, I'll just come to you बेटा, I'll just come to you, Lalita, I'll just come to you, for the above statement to be true, which of the following has to be true? ठीक। अब इसकी लैंग्वेज आप देखो बेटा, इसकी लैंग्वेज क्या है कि फॉर द अबव स्टेटमेंट टू बी ट्रू, हमको
इसको ट्रू करना है तो हमको ऑप्शंस में से ले जाके सपोर्ट ऊपर देना पड़ेगा। लैंग्वेज चेंज होती है इन्फ्रेंस में। इन्फ्रेंस कहता है इफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, विच मीन्स अब ये कह रहा है कि जो ऊपर दिया हुआ है हमारे पैसेज में वो सच है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू, इट मीन्स अब सपोर्ट ऊपर से नीचे को आ रहा है। ठीक है, ये डायग्राम बेटा थोड़ा मन में रखो अपने किसी तरह से। इफ द पैसेज इज आस्किंग फॉर सपोर्ट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ assumption. If the options are asking for support from the passage, कि passage तो true है, which of the following are going to be true, is going to be true. In that case, it is a question on inference. कुल मिला के हम पहले assume करते हैं, फिर हम act करते हैं, और उसके बाद कोई infer करता है। तो अगर action के बाद का सवाल है तो आपका inference का सवाल है। action के पहले का सवाल है कि क्या सोच के किए थे गुरु, तो आपका assumption का सवाल है वो। ऑलराइट, सो जस्ट कीप इन माइंड, सिंप्लीफाई कर लो इन चीजों को। सिंप्लीफाई, अज्यूम किया, एक्ट किया, इन्फर किया। जस्ट कीप दिस order in mind. Now we come to Lilita. All right. So sometimes some words are understandable and making us confused. Okay. ये हम मान के चलते हैं कि हर पैसेज में 2 या 3 वर्ड्स होंगे जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं, इनका मीनिंग नहीं पता होगा बेटा। ठीक, तो डोंट लूज कॉन्फिडेंस, नंबर 1। नंबर 2, यू विल फाइंड कि उनके बेसिस पे सवाल ज्यादा आते नहीं है। हाँ, अगर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, इफ दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स विच मींस नॉर्मल एवरीडे वर्ड्स ऑफ अ गुड जर्नल और अ मैगजीन, तब तो हमारी वीकनेस है दैट हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। बट अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड जानते हो तो आपको इक्का दुक्का वर्ड यहां वहां नहीं पता चल रहा, उससे फर्क पड़ता नहीं है ओवरऑल पैसेज की अंडरस्टैंडिंग पे। नंबर 2, अगर कोई वर्ड आउट ऑफ, यू कैन से नॉट आउट ऑफ, अगर कोई वर्ड ऐसा है जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, बायोटेक की बात कर रहा है, उन्होंने कोई बायोटेक का टर्म दे दिया, बेटा 99% आप देखोगे वो उस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज दे डोंट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू बी ए स्टूडेंट ऑफ बायोटेक, राइट? और केमिस्ट्री और फिजिक्स और सोशोलॉजी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, वो तो जनरलाइज पैसेज दे रहा है ना। तो अगर कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक देगा उसको वो एक्सप्लेन करेगा, और अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो बी अश्योर्ड वहां से सवाल नहीं आ रहा। सो आप नंबर 1 मान के चलते हैं कि यार 1-2 वर्ड्स होंगे जो पता नहीं होंगे, उससे कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए। अगर आपने ओवरऑल पैसेज की थीम समझ ली है, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। आप देखो ना, वोकैब बेस्ड एक भी सवाल नहीं आया यहाँ पे। और हाँ, प्लीज कीप स्ट्रेंथनिंग योर वोकैबुलरी। वर्ड पावर मेड इजी लगा डालो, अभी भी टाइम है, रोज बैठ के लगाओ, 30 दिन में खत्म हो जाएगा, काफी मजबूत हो जाएगा उससे आपका वोकैब। ठीक है, कोई नया वर्ड सामने आता है, जैसे आज हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स थे जो कि खट 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 करके सामने आए, अब ये वर्ड्स आपको बिल्कुल ध्यान में रहने चाहिए, अगले बार इन वर्ड्स पे नहीं अटकेंगे। ऑल राइट, हाउ टू चूज एन आरसी, ओह कूल यार, दैट इज शुभांशी। ओके, बेटा देखो, हमने भी क्या किया, हमने बात किया कि हम 120 पैसेजेस लगाएंगे। ठीक है, अब 120 पैसेजेस करते करते डोंट यू थिंक हमको आइडिया लग जाता है कि कौन से पैसेज हमसे हो जाते हैं, कौन से नहीं होते हैं? जैसे एक क्लासिकल इंग्लिश के मॉडल्स आते हैं, वो कठिन होते हैं। वो एक मॉडल क्लासिकल बता रहा है, एक फोर्ट्रेस बता रहा है, एक ऐसा बता रहा है, एक वैसा बता रहा है। ठीक है, एक सिंपल साइंस बेस्ड आएंगे, फैक्ट बेस्ड, तो अगर आप उनको पढ़ते हो खट से निकलेगा। कुछ फाइनेंस इकोनॉमिक्स वाले आएंगे, हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ हो वो, बट दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी कॉन्शियसली फिगर्ड आउट कि यार इतने पैसेज में करती हूं और इसमें से इस तरह के पैसेज मुझसे हो जाते हैं, उस तरह के नहीं होते हैं। तो व्हाट किड्स हैव सजेस्टेड, जो क्रैक किया है कि सर मैंने क्या किया ना, मैंने एक बार नजर मार ली ऐसे ही, और फिर थोड़ा आइडिया लग जाता है कि यार ये सिंपल सा है, ये शायद हम मेरे टेस्ट का है, हो जाएगा। बट देन बेटा फॉर दैट यू हैव टू काइंड ऑफ do a lot many passages to reach that level where looking at a passage you can figure out कि यार ये वाला कर लेंगे, ये वाला मुश्किल पड़ेगा हमको। क्योंकि बेटा एक ही कैटेगरी के पैसेजेस आते हैं, ऐसा कोई बहुत, आप कैट का ना पैटर्न थोड़ा चेक करो, पैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं, क्या दे रहे हैं, किस तरह के दे रहे हैं। आप देखोगे कि लॉट ना वो ठीक है अलग अलग चीजों पे है, बट ओवरऑल स्टाइल ना उनकी कुछ एक पैटर्न पे आ जाती है। So if you do 100 passages over next 60 days or 120 passages over next 60 days, I'm pretty sure बेटा you'll be able to figure out कौन से passages मेरे strength हैं और कौन से इतने strong नहीं होते हैं। Any questions? Any questions coming up from your side?
All right. For those of you who will have questions later on, this is my name. And this is my contact. You can drop me a WhatsApp message. Call थोड़ा मुश्किल होता है. Sometimes we are busy, we are not able to pick it up. But हाँ, WhatsApp पे तो clean cut हम जवाब दे सकते हैं. All right? हाँ. Okay. Namrata says from where? बेटा नम्रता सिंपल है बेटा. PYQs कहीं मत देखो दाएं बाएं. 2017-18 से उठाओ 23 तक के लगा डालो. बहुत माल है इनके पास. All right. So I think this is sufficient. Otherwise, मुझे पैसे दे दे मैं बता दूंगा. You can join my classes. All right. I run my classes on the app called Catmint. So you can have a look. अगर आप Android owner हैं तो सीधा जाएंगे. Otherwise, आप My Institute install करेंगे and then iOS उसमें organization code रहता है. वो आपको fill करना पड़ेगा. You can ask for the organization code through a message on WhatsApp. मैं आपको वो दे दूंगा. एंड डोंट वरी, वी डोंट कीप योर डेटा एंड कीप कॉलिंग यू बैक कि मेरा क्लास ज्वाइन कर लो. करना है करो, नहीं करना है मत करो. मेरे बिना काम चल जाए, बहुत अच्छी बात है बेटा, पैसे बचेंगे. बट प्लीज 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 ओवर द नेक्स्ट 60 days जस्ट कीप एट इट बेटा. डोंट गिव अप नाउ, डोंट गिव अप नाउ. 60 दिन का बात है यार, झोंक दे अपने आप को, देखा जाएगा. All right. So I hope I made myself clear. My name is Sudeep Bajpai. My number is 9335814181. Catmint is the app I teach on. And if you got any query, please, you can please drop a message. I won't charge for that. And I will reply. Thank you. Thank you so much, sir. I think I'll be speaking on behalf of all the participants. Thank you for sharing the strategies. This will certainly ease out their attempt for RC question. Thank you so much, sir. Thank you.